شاگرد تها زالبولانی لوٹوں مختلف ہیں آیانی جہد ہوں مختلفی و آیانی مزاحمت ہوں مختلفی واحدی کے ماں پنجاب شاگردہ بیچاری 8 مارچ روزہ زالبول کے ریریانی شکلاوتی لوگا چدار کھایاں بڑا آیانی دستے سلوگن سما بیچاری انچو کہ میرا جسم میری مرضی بڑا اشیاء جی ہمیں دھانا بیتی کہ اس زالبولانی ہماری معاشرہ استی وہ آیانی ہمیں کے جنگ استی آیانی وطی ہما سوسائٹی تہے مردی یعنی خلافی آیانی جنگ وطی سوسائٹی تہے ہراسمنٹ خلافی وہ وطی واسطہ آزادی ہما زالبول جندے آزادی کے آیا وطی شاگرد تہا یا آزاد ماحول رسی بلے واحدی کہ ماں بلوچ شاگردہ بیچاری بڑا بلوچ شاگرد جیڑا مختلف ہیں منانا ہوش کا کہ بلوچ مدام اجتماعی شکلہ درکتا بڑا بلوچا مدام ودی سرزمین و سرٹگار نارا جتا بلوچا مدام ودی پجار نارا جتا بلوچا مدام ودی بقائے نارا جتا او بلوچا مدام ودی لوگے دارو بیگوائی برات و پتے نارا جتا او اجتماعی طورا بلوچا ریاست اما ظلم و زرافیانی علاقہ جہد کو تھا او انگا بلوچی جہدہ کھنگائیں وحدی کے بلوچ 8 مارچہ در کہتی او 8 مارچہ منائنی تھی بڑا بلوچ ودی گارو بیگوائی مردمانی واسطہ 8 مارچہ داری تھی منہو ہمی شاگرد باہریہ منانا موش کن کے ملی کماش استاد وائد کمبر کو بلوچ جہدہ بندوقی و بلوچ کھاجی جوہرے باہری وادی کے تئی کماش جہدہ تو بندوق بھی تھی گوڑا تئی جندے ہما کی انڈیویجولیٹی یا انفرادیت کے اصلی ختم بھی تھی او ماں بلوچ انچی بدقسمتی کہ ماں انچی ملک کے باہری یا ماں انچی ریاستی باہری کہ ادا ہما کے پنشمنٹ استی کلیکٹیولی رہ گئی ریاست مدام کرا اجتماعی طورہ سزا دنتی وحدی کے بلے من کو شگلوٹی کہ ای ریاستہ فرق نہ کام کہ تو زالبولی ہے جنینی ہے یا مردینی ہے ای ریاست کرا سیاسی نظریہ ویسا ٹارگٹ کمتی محلہ ہوں بارتی یاسرہ ہوں بارتی ای ریاست ہیچ فرق نہ کنتی اگر تو یہ گوشے کہ تو یہ سیاست باہر نہ بے بڑا تو ریاست ظلم و ضرورتیاں چی بچے بلے یہ ریاست طرح انچین جا گئی سر کان طرح انچون ٹارگٹ کان کہ تئی کے رات کے ایچ راہ پش نہ کمی تھی وہ تی کے رات کے ایچ آپشن نہ بھی تھی بڑا مزال بول برچا یہ جوہد باہر مبی اور یہ جوہدہ وطی مکنی محنت والا بعض منتوار میلا بلوچ کہتی ہے بلوچ اپنی بقا کا نعرہ لگاتی ہے اپنے لاپتہ والد اور اپنے لاپتہ بھائی کے لیے نعرہ لگاتی ہے ابھی میں دعوت دیتی ہوں ظہور اور سجاد احمد کی بہن سیدہ بلوچ کو وہ اسٹیج پر آئے سیدہ بلوچ تاریخ نبارٹ پانگا نے چلے میں اردو میں بات کرتی ہوں جس طریقے سے آج انٹرنیشنل وومنس ڈے پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے وہیں پہ میں بلوچ خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں ان کی اس جوہد کو کہ جس میں نہ وہ کبھی رکی نہ کبھی تکی
जहाँ तक बात है इंटरनेशनल वुमेंस डे की, तो वो एक तबकाती जंग था कि जहाँ कुछ ख़वातीन ने जो कि मजदूरी करती थी फैक्ट्रीज में, और उनके साथ जो जुल्म किया जाता था उसके खिलाफ वोट खड़ी हुई। और वो चिंगारी जो ट्रायंगल एक फैक्ट्री में लगी कि जिसके नतीजे में 144 ख़वातीन शहीद हो गई, उस शहादत के बाद वो ख़वातीन निकली और उन्होंने एक मजबूत आवाज़ बनाई, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया, और उन्होंने उस जुल्म उस जबर के खिलाफ इनकार किया और साबित किया कि जहाँ आप यूनाइटेड होते हैं, जहाँ आप इनकार करते हैं, वहाँ आपके लिए मज़ीद रास्ते खुलते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बलोच वुमेन को देखूँ और उनसे पहले सिर्फ एज अ वुमेन देखूँ, तो मुझे ये लगता है कि खातून एक नर्चरर है, एक खातून एक माँ है कि जहाँ वो उस बच्चे को पैदा करती है, उसके लिए रोटियां बनाती है, सबसे पहले उसे अपना ही दूध पिलाकर बड़ा करती है, और उसके बाद एक बहन की सूरत में हमेशा एक दस्ते शफकत बन के उसके सर पे खड़ी रहती है। और दूसरी तरफ अगर मैं उस खातून का रोल देखूं, जो कि मुझे तारीख में ये बताता है कि बीबी बांगड़ी की सूरत में, बीबी ज़ैनब की सूरत में वो हमेशा हर सूरत में प्रोमिनेंट रही है। मेरी जंग एक तबकाती जंग नहीं, मेरी जंग एक जेंडर के हिसाब की जंग नहीं, मेरी जंग मेरे मर्द से इस बुनियाद पे नहीं होता कि आप मुझे क्यों बराबरी का नहीं समझते या आप मुझे वो राइट्स नहीं देते जो कि एक इंसान के हैं। आज भी बलोच राज के अंदर, घर के अंदर फैसला करने वाली एक बूढ़ी माँ होती है, जो कि ये साबित करता है कि आज भी आपके बलोच माशरे में खातून की क्या मिसाल है या क्या रहता है। दूसरी तरफ अगर मैं स्टेट एग्रेशन को देखती हूँ और उसके बाद एक बलोच खातून को देखती हूँ, तो उसका वो मजबूत चेहरा मेरे सामने आता है कि जहाँ वो सालों से इस स्टेट के सामने खड़ी है, चाहे वो किलिंग पॉलिसीज की सूरत में हो, चाहे वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की सूरत में हो, कि जहाँ बलोचिस्तान में आज एक ऐसा घर नहीं कि जहाँ से कोई इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन नहीं है, या उससे पहले बताया जा चुका है या करंटली वो इन्फोर्स डिसअपीयर्ड है। एक ऐसा कलेक्टिव पनिशमेंट, एक ऐसा इज्तिमाई तकलीफ कि जिसमें ये खवातीन मुसलसल सालों से मुब्तला हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं फिर रोल देखती हूँ इस बलोच वुमेन का डिफरेंट मार्च के अंदर, डिफरेंट प्रोटेस्ट के अंदर, और उसके ऊपर मैं रोल देखती हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का कि जहाँ इनको शर्म नहीं आती, वो ये कहते हैं कि हम आपके बच्चों को उठा के ले जाएंगे, जो कि मावराए अदालत भी है, जो कि मावराए आईन भी है। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि आप किसी भी बच्चे को उठाने के बाद 48 घंटों में उसे अदालत में पेश करने के मजाज हैं। वो उन तमाम अपने असूलों को, अपने इन तमाम मुरतब करता असूलों को अपने ही लंबे बूटों से लताड़ते हुए बलोच माँ को ये धमकी देता है कि तुम घरों में बैठो। शेम ऑन ऑल ऑफ देम। शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को, चाहे वो खुद को किसी बलोच ट्राइब से या किसी पश्तून ट्राइब से कहते हैं। मैं उसे ऐसा नहीं कहती। मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कारिंदे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खुदारा इतना ही करें कि जितना कल के दिन आप बर्दाश्त कर सके। ये एक बलोच माँ और बलोच बहन आपसे कह रही है। करंटली अभी जो अस्मा का केस हुआ, उस केस के अंदर अताउल्लाह जद्दक ने जिस तरीके से अपनी बहन के लिए उठ खड़ा हुआ, जिस तरीके से उस जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, वो साबित करता है कि मैं एज अ बलोच क्या हूँ और मेरी हैसियत एज अ बलोच वुमेन क्या है और किस तरीके से है। कि जहाँ एक रियासती गुंडा घरों के अंदर घुसकर मेरी चादर उछा और दीवारी को पार करने के बाद उसमें इतनी हिम्मत आती है कि वो उस बच्ची को उठा के ले जाता है, वही मेरे लिए खड़ा होने वाला मेरे अपने घर का भाई होता है। अगर इसको मैं फिर कंपेयर करूं बलोच वुमेन को और उस सनफी आजादी रोज की जिसकी
जिस तरीके से मैं बता रही थी कुछ चीज़ें, बलूचिस्तान की जलती हुई सरजमीन पे आपको मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप जब भी जहाँ जाएंगे, किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी महफिल में, किसी भी शादी में, तो आपको हम जैसी बदनसीब माएँ और बहनें मिलेंगी जो कि मुसलसल एक सरापा एहतजाज हैं अपने बच्चों के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पादाश में उठाए गए कि उनकी आइडेंटिटी एज अ बलोच है। और जहाँ हम बात करते हैं जेनोसाइड की एज अ बलोच, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरफराज जैसे कुछ लोग आज भी उन्हीं के ओहदों में बैठकर जिस तरीके से गवर्नमेंट से, जिस तरीके से उनकी डिफरेंट पॉलिसी से, उन लोगों की फैसिलिटी से फैज़याब होते हैं, तो वो मुझे एक क्लियर मैसेज ये देता है कि जब जब तुम उस एग्रेशन के खिलाफ बात करोगे, उस तकलीफ के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, उस वक्त तुम एज अ बलोच ट्रीट किए जाओगे। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द सुलगती हुई आग के लिए तुम अपनी आंखें इस एक शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दबा दो तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों से इस मुख्तलिफ टाइम में जब मेरी बात होती रही है, जिसमें नज़र मोहम्मद की माँ है कि जिनका इंटरव्यू हमने करवाया था BBC के लिए, उनको एक मौलवी ने एक तावीज़ दिया है जो उन्होंने एक मुर्गी के गले में बांधा हुआ है। उन्हें ये कहा गया है कि ये मुर्गी के गले में उस वक्त तक रहे कि जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आता। और आज आलम ये है कि वो खातून उस मुर्गी को सहन में भी गिरने नहीं देती कि उसकी टांगें तक जाएंगी। वो तकलीफ है कि जिसे शायद सिर्फ और सिर्फ वो माँ बता सकती है या महसूस कर सकती है कि जिसका कोई अपना मिसिंग हो। दूसरी तरफ अगर मैं ज़हूर की माँ को देखती हूँ तो वो एक ऐसी बदनसीब माँ है कि जो कोयटा जैसी सर्दी में हीटर ऑन नहीं करती कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के पास कोई ऐसा सोर्स होगा कि जो उसे गर्म रख सके, और वही माँ गर्मियों में ठंडा पानी नहीं पी सकती कि मुझे नहीं पता कि ज़हूर और सजाद किस हाल में है। अगर आज मैं जावेद शम्स की माँ को देखती हूँ जो कि अभी भी कर्दिगाह में क्रॉस किम पर बैठी हुई है, और जिस दिन वो सिट इन शुरू हुआ मैं उनके साथ मौजूद थी, और वो खातून रो रही थी उन मुसाफिरों के लिए कि मुझे अफसोस है कि कल रमज़ान शुरू हो रहा है, लेकिन मैं और मुझ जैसी दूसरी माएँ मजबूर है कि हम रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं कि जहाँ मुझे पता है कि कोयटा से कुछ लोग अपनी ख़रीदारी करके वापस जा रहे हैं, या नोश के दालबंदिन कफ्तान से कुछ लोग कोयटा ईद की शॉपिंग या फिर रमज़ान की शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। उस हालत में भी उस माँ का ज़र्फ देखें कि वो रो रही है। दूसरी तरफ अगर मैं जाकिर सरबरा की माँ को देखती हूँ, उसकी वो मासूम आंखें और वो आंसू, तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मैं बयान कर सकूं उस तकलीफ को। अगर मैं अरमान मरी की माँ को देखती हूँ कि जिसने ये इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी की लाश ये कहकर नहीं लूँगी कि वो एक दहशतगर्द है,
हम और मुझे फख्र है ये कहते हुए कि मैं उस कौम से हूँ और खातून भी हूँ, बलोच भी हूँ, कि जहाँ ऐसी माएँ हैं कि जो अपने इकलौते बेटे की, वो बेटा भी कि जो उसे किसी और ने दिया था, उस बेटे के सराहने खड़े होकर वो इनकार करती है कि मैं इस गवर्नमेंट की इस फिल एंड डन पॉलिसी को नहीं मानती। उसके वो तमाम झूठ कि जिनके आगे उसने एक अननोन कब्रिस्तान बनाया, उसे आबाद किया, जहां हमारे प्यारे दफन किए गए विदाउट एनी डीएनए टेस्ट, उस खातून ने उससे इनकार किया और सच सलाम है उस माँ को, उसकी जुर्रत को। दूसरी तरफ अगर मैं देखती हूँ शहीदों के बच्चों को, शहीद फैसल की बेटी को, तो जहाँ वो बच्ची आज भी 13 सालों से उसको ये लगता है कि अगर मैं आज में जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे बाबा के दीदार होंगे। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ शहीद रईफी की टीवी को, जो आज भी उस ट्रॉमा में है, इतने साल गुजरने के बावजूद वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकी। तीसरी तरफ अगर मैं देखती हूँ जाकिर मजीद की माँ को, कि जिसने एक खातून MBA को, जो कि बलोच पार्टी है, उस खातून ने ये कहा कि हमने एजेंसी को, जब हम रेड जोन पे बैठे हुए थे तो उस खातून ने ये कहा कि हमने एजेंसी से बात की है और हमने ये कहा है कि अगर आपके बेटे जिंदा नहीं है तो हमें बता दिया जाए। आप यकीन करें अभी भी जब ये बात कर रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आसान नहीं है उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए कि जिनके प्यारे आप जिंदा उठा के ले गए हैं और हमें रियासत से अब वो जिंदा सलामत हंसते मुस्कुराते हुए वापस जाएंगे। और वहाँ जाकिर की माँ का जवाब ये था कि मैं हैरान हूँ कि तुमने ये लफ्ज कहे तो कहे कैसे। मैं आज भी अपने हाथों में ये चूड़ियाँ सिर्फ इस उम्मीद से पहन के बैठी हूँ कि जब जाकिर आएगा तो ये चूड़ियाँ उतार के उस पे वार दूंगी और दूसरे ही दिन उसका रिश्ता लेके जाऊंगी और जाकिर की मंगनी करूंगी। मेरी माँ ये है जो कि मेरे लिए उम्मीद है। दूसरी तरफ मैं मासूमा जैसी बच्ची को देखती हूँ जो सिर्फ 3 महीने की थी जब इसके वालिद को लेके गए हैं, और आज वो बच्ची डिफरेंट फोरम्स पे अपने वालिद के बारे में खुद आपके स्टेट के सामने, लोगों के सामने वो अपना एहतजाज रख रही है कि खुदारा मेरे वालिद को वापस किया जाए, मुझे पता तो चले कि वालिद किसको कहते हैं, उसकी शफ़क़त क्या होती है। अगर इन तमाम सूरत-ए-हाल में अगर मैं ये देखती हूँ कि बलोच वुमेन का या बलोच ख़वातीन का चेहरा कौन है, तो इस चेहरे के अंदर मुझे मुख्तलिफ हिस्ट्री से लेकर आज तक कई नाम नजर आते हैं जो कि मेरे लिए काबिल फख्र है। जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा कि जहां बलोच वुमेन की और पंजाब की वुमेन की अगर हम बात करते हैं या पाकिस्तान में रहते हुए किसी और खातून की मैं बात करती हूँ, तो मेरी और उसकी जंग में बहुत फर्क है। मेरी जंग ना मेरे अरेस्टमेंट के लिए है, मेरी जंग ना किसी तबकाती वर्ग के लिए है, मेरी जंग ना मेरे वालिद और मेरे भाई से इस बुनियाद में है कि वो मुझे घर में बंद रखते हैं या सिर्फ एज अ जेंडर बुनियाद मुझ पे जुल्म करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अंदू नहीं के तवार का नंबर 1 अगर कुछ हाँ हेलो खत्म। चले मैं ऐसी बात करती हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक आखिर तक? हाँ? अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं आज देखती हूँ तो पंजाब में आप देखेंगे कि वहाँ एक 3 महीने की बच्ची महफूज नहीं, एक 80 साल खातून भी अपनी इज्जत के लिए सिक्योरिटी वाइज उसके लिए एक थ्रेट है, जबकि दूसरी तरफ बलोच माएँ और बलोच बहनें सड़कों पर बैठी हुई एहतजाज कर रही हैं और सिर्फ उसी मर्द को वापस लाने के लिए जो कि उसका भाई है, उसका वालिद है या फिर उसका हमसाया है। तो ये एक क्लियर और वाजिया फ़र्क है कि जो मुझे ये बताता है कि एज अ बलोच वुमेन मेरी और उनकी लड़ाई में बहुत फ़र्क है। मेरी लड़ाई मेरे मर्द के लिए है और उनकी लड़ाई उसके मर्द के ख़िलाफ़ है। वो अपने मर्द के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकलती है, नारे लगाती है, जबकि मेरा नारा यह है कि मेरे भाई को, मेरे वालिद को, किसी का अगर शौहर मिसिंग है तो उस शौहर को वापस किया जाए, ताकि कम से कम वो एक फैमिली यूनिट एक आराम से
अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जिस साइकोलॉजिकल पेन से, जिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से आज हम गुजर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल इंसान के साइन हो सकते हैं कि जहाँ आपको ना सर्दी और गर्मी का पता चले, ना जहाँ आपको दिन और रात का पता चले, ना आपको भूख लगे, ना आपको प्यास लगे। सोच सिर्फ और सिर्फ ये हो कि आपका भाई कहाँ और किस हालात में है। इस तमाम सूरत हाल में दूसरी तरफ जो मैं बलोच वुमेन का रोल देख रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत इंकरेजिंग है। वो चेहरा बानड़ी का भी है, वो चेहरा डॉक्टर मारन का भी है, वो चेहरा बीबी रैनब का भी है, वो चेहरा समी का भी है, जो मुझे आज ये बताती हैं फ़ख्र के साथ कि मेरी उम्मीद, मेरा फ्यूचर ये बच्चियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, और जब तक ये हैं हमारी जौहद है, हम सब की जौहद है, एंड वी हैव टू स्ट्रगल। और आज की बलोच ख़वातीन ने सिर्फ़ और सिर्फ इस रियासत को और उसके वो तमाम अवारी लोग, उन सबको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज दिया है, वो है उम्मीद। बलोच ख़वातीन इन तमाम चीज़ों से, फिलेंडम पॉलिसी से, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस से, इस तमाम तकलीफ से गुजरने के बावजूद वो खातून आज भी जिस इस्तिकामत से कड़ी है, वो साबित कर रहा है कि ये उम्मीद उस वक्त तक सलामत रहेगी जब तक उस घर की माँ में ये हौसला है कि उस तकलीफ से गुजरने का हज़म रखती है। हुकूमत चाहे जो भी करे, हमारा जवाब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रेशन, और इसके अगेंस्ट जितनी भी स्ट्रगल होगी वो हम करते रहेंगे। बलोच खातून का एक ही नारा है, उम्मीद के साथ स्ट्रगल, और स्ट्रगल के साथ यूनिटी, और ये यूनिटी, ये मुत्तहद फोरम ही हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाएगा। और हमारी मंजिल हमारे बच्चों की आज़ादी है, हम सब की वो आज़ादी है कि जहां हम किसी भी इस तरह के कलेक्टिव पनिशमेंट से दूर होंगे, और इस तरह के जितने भी रियासती तकलीफ़ें हैं उनसे एक बलोच माँ और एक बलोच बहन महफूज होगी। लख मिन्नत वाची। थैंक यू। बहुत शुक्रिया संगत सईदा बलोच। एक बलोच माँ आज भी ये कहती है कि मैं अपने बेटे की लाश नहीं लूँगी, क्या आपको मैं ये लिख के दे दूँ कि एक दहशतगर्द है। ये सईदा बलोच के अल्फाज। अभी मैं आगे चलती हूँ। गयासुद्दीन के कज़न माजबीन से मैं ख्वाहिश करती हूँ कि वो स्टेज पर आ जाए। गयासुद्दीन की कज़न माजबीन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने शहीद वतन लुमा